चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट अ लेटर टू गॉड भगवान को एक पत्र द हाउस यह घर द ओनली वन इन द एंटायर वैली पूरी घाटी में एकमात्र सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल एक निचली पहाड़ी के शिखर पर स्थित था From this height one could see the river and a field of ripe corn dotted with the flowers. इस ऊंचाई से कोई नदी और फूलों से लदे पके अनाजों के खेत देख सकता था. That always promised a good harvest. जो हमेशा अच्छी फसल का वादा करते थे. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. पृथ्वी को केवल एक चीज की आवश्यकता थी, वह थी भारी बारिश या कम से कम बौछार. Throughout the morning लेंचो सुबह भर लेंचो Who knew his fields intimately जो अपने खेतों को करीब से जानता था had done nothing else but see the sky towards the northeast ने उत्तर पूर्व की ओर आकाश देखने के अलावा और कुछ नहीं किया. Now we are really going to get some water, woman. अब हमें वास्तव में थोड़ा पानी मिलने वाला है, महिला. The woman who was preparing supper replied, जो स्त्री भोजन तैयार कर रही थी, उसने उत्तर दिया. Yes, God willing, हाँ, ईश्वर ने चाहा. The older boys were working in the field. बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे. While the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all. जबकि छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे, तभी महिला ने उन सभी को बुलाया. Come for dinner. रात के खाने के लिए आओ. It was during the meal that. भोजन के दौरान ही. Just as Lencho had predicted. जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी. Big drops of rain began to fall. बारिश की बड़ी-बड़ी बूंदें गिरने लगी. In the northeast huge mountains of clouds could be seen approaching. उत्तर पूर्व में बादलों के विशाल पर्वत आते दिखाई दे रहे थे. The air was fresh and sweet. हवा ताजी और मीठी थी. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. वह आदमी अपने शरीर पर बारिश को महसूस करने का आनंद लेने के अलावा किसी अन्य कारण से बाहर नहीं गया था. And when he returned he exclaimed. और जब वह लौटा तो चिल्लाकर बोला. These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. ये आसमान से गिरने वाली बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये नए सिक्के हैं. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s. बड़ी बूंदें 10% टुकड़े हैं और छोटी बूंदें 5 टुकड़े हैं. With a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. संतुष्ट भाव से उसने बारिश के पर्दे में लिपटे फूलों वाले पके अनाजों के खेत को देखा. But suddenly a strong wind began to blow. लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगी. And along with the rain very large hailstones began to fall. और बारिश के साथ साथ बहुत बड़े-बड़े ओले गिरने लगे. These truly did resemble new silver coins. ये वास्तव में नए चांदी के सिक्कों के समान थे. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. लड़के खुद को बारिश से बचाते हुए जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर भागे. It's really getting bad now. अब सचमुच बहुत बुरा हो रहा है. Exclaimed the man. आदमी चिल्लाया. I hope it passes quickly. मुझे आशा है कि यह जल्दी से गुजर जाएगा. It did not pass quickly. यह जल्दी से पास नहीं हुआ. For another hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. 1 घंटे तक घर, बगीचे,
पहाड़ी, अनाजों के खेत और पूरी घाटी पर ओले बरसते रहे। The field was white, as if covered with salt. मैदान सफेद था, मानो नमक से ढका हुआ हो। Not a leaf remained on the trees. पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा। The corn was totally destroyed. अनाज पूरी तरह नष्ट हो गया। The flowers were gone from the plants. पौधों से फूल उड़ गए। Lencho's soul was filled with sadness. लेंचो की आत्मा दुहक से भर गई। When the storm had passed. जब तूफान थम गया। He stood in the middle of the field and said to his sons. तो वह खेत के बीच में खड़ा हुआ और अपने बेटों से कहा, A plague of locusts would have left more than this. टिड्डियों की विपत्ति से तो इससे भी अधिक हानि होती। The hail has left nothing. ओलों से कुछ भी न बचा। This year we will have no corn. इस साल हमारे पास अनाज नहीं होगा। That night was a sorrowful one. वह रात बहुत दुखद थी। All our work, for nothing. हमारा सारा काम, बिना कुछ किए। There is no one who can help us. वहाँ कोई नहीं है, जो हमारी मदद कर सके। We will all go hungry this year. इस साल हम सब भूखे रहेंगे। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन घाटी के बीच में उस अकेले घर में रहने वाले सभी लोगों के दिलों में एक ही उम्मीद थी, भगवान से मदद। Don't be so upset. इतना परेशान मत होइए। Even though this seems like a total loss. भले ही यह कुल नुकसान जैसा लगता है। Remember, no one dies of hunger. याद रखें, कोई भी भूख से नहीं मरता। That's what they say, no one dies of hunger. वे यही कहते हैं, कोई भूख से नहीं मरता। All through the night, पूरी रात। Lencho thought only of his one hope. लेंचो ने केवल अपनी एक ही आशा के बारे में सोचा। The help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything. ईश्वर की मदद, जिसकी आंखें, जैसा कि उसे निर्देश दिया गया था, सब कुछ देखती है। Even what is deep in one's conscience. यहाँ तक कि किसी के विवेक की गहराई में भी। Lencho was an ox of a man, working like an animal in the fields. लेंचो एक आदमी का बैल था, जो खेतों में एक जानवर की तरह काम करता था। But still he knew how to write. लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। The following Sunday, at daybreak, he began to write a letter. अगले रविवार को भोर में उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, which he himself would carry to town and place in the mail. जिसे वह स्वयं शहर ले जाता और डाक से भेजता। It was nothing less than a letter to God. यह ईश्वर को लिखे एक पत्र से कम नहीं था। God, he wrote. भगवान, उन्होंने लिखा। If you don't help me, my family and I will go hungry this year. यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं, तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रहेंगे। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes. मुझे अपना खेत दोबारा बोने और फसल आने तक जीवित रहने के लिए 100 पेसों की जरूरत है। Because the hailstorm, क्योंकि ओलावृष्टि। He wrote to God on the envelope. उसने लिफाफे पर भगवान के लिए लिखा। Put the letter inside and, still troubled, went to town. पत्र अंदर रखा और, अभी भी परेशान होकर, शहर चला गया। At the post office, he placed a stamp on the letter. डाकघर में उन्होंने पत्र पर एक मोहर लगाई। And dropped it into the mailbox. और उसे मेलबॉक्स में डाल दिया। One of the employees. कर्मचारियों में से एक।
who was a postman and also helped at the post office, जो एक डाकिया था और डाकघर में मदद भी करता था, went to his boss, अपने मालिक के पास गया, laughing heartily and showed him the letter to God, खूब हंसे और उसे भगवान के नाम लिखा पत्र दिखाया. Never in his career as a postman had he known that address. डाकिया के रूप में अपने करियर में उन्होंने कभी भी उस पते को नहीं जाना था. The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing. पोस्टमास्टर एक मोटा, मिलनसार व्यक्ति था भी हंसने लगा. But almost immediately he turned serious and, tapping the letter on his desk, commented. लेकिन लगभग तुरंत ही वह गंभीर हो गया और पत्र को अपनी मेज पर थपथपाते हुए टिप्पणी की. What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter. कैसा विश्वास! काश मुझे भी उस व्यक्ति का विश्वास होता जिसने यह पत्र लिखा है. Starting up a correspondence with God. शुरुआत करना भगवान के साथ एक पत्राचार. So, in order not to shake the writer's faith in God. इसलिए ईश्वर में लेखक के विश्वास को न हिलाने के लिए. The postmaster came up with an idea. Answer the letter. पोस्टमास्टर को एक विचार आया, पत्र का उत्तर दो. But when he opened it. लेकिन जब उन्होंने इसे खोला. It was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. तो यह स्पष्ट हो गया कि इसका उत्तर देने के लिए उन्हें सद्भावना, स्याही और कागज से अधिक कुछ चाहिए था. But he stuck to his resolution. लेकिन वह अपने संकल्प पर अड़े रहे. He asked for money from his employees. उन्होंने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे. He himself gave part of his salary. उन्होंने खुद अपने वेतन का कुछ हिस्सा दिया. And several friends of his were obliged to give something for an act of charity. और उनके कई दोस्त दान के कार्य के लिए कुछ देने के लिए बाध्य थे. It was impossible for him to gather together the 100 pesos. उसके लिए 100 पेसो इकट्ठा करना असंभव था. So he was able to send the farmer only a little more than half. इसलिए वह किसान को आधे से थोड़ा अधिक ही भेज सका. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. उसने पैसे लेंचो को संबोधित एक लिफाफे में रख दिए और उसके साथ एक पत्र भी रखा जिसमें हस्ताक्षर के रूप में केवल एक शब्द था, भगवान. The following Sunday Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगले रविवार को लेंचो सामान्य से थोड़ा पहले यह पूछने आया कि क्या उसके लिए कोई पत्र है. It was the postman himself. यह डाकिया ही था. Who handed the letter to him? जिसने उसे पत्र सौंपा था. While the postmaster, जबकि डाकपाल. Experiencing the contentment of a man who has performed a good deed. एक अच्छे काम करने वाले व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव करते हुए. Looked on from his office. अपने कार्यालय से देख रहा था. Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. पैसे देखकर लेंचो को तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ. Such was his confidence. ऐसा उसका आत्मविश्वास था. But he became angry when he counted the money. लेकिन जब उसने पैसे गिने तो वह क्रोधित हो गया. God could not have made a mistake. ईश्वर कोई गलती नहीं कर सकता था. Nor could he have denied Lencho what he had requested. नहीं वह लेंचो से उसकी प्रार्थना को अस्वीकार कर सकता था. Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. तुरंत लेंचो कागज और स्याही मांगने के लिए खिड़की के पास गया. On the public writing table. सार्वजनिक लेखन मेज पर. He started to write, with much wrinkling of his brow,
caused by the effort he had to make to express his ideas. उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए किए गए प्रयास के कारण अपनी भौहों पर बहुत अधिक झुर्रियाँ डालते हुए लिखना शुरू किया। When he finished, जब उसका काम पूरा हो गया, he went to the window to buy a stamp. तो वह एक मोहर खरीदने के लिए खिड़की के पास गया, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. जिसे उसने चाटा और फिर अपनी मुट्ठी के झटके से लिफाफे पर चिपका दिया। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. जैसे ही पत्र मेलबॉक्स में गिरा, पोस्टमास्टर उसे खोलने गया। It said, God of the money that I asked for. इसमें कहा गया, भगवान, मैंने जो पैसा मांगा था। Only 70 pesos reached me. उसमें से केवल 70 पेसोस ही मुझ तक पहुँचे। Send me the rest. मुझे बाकी भेज दो। Since I need it very much. क्योंकि मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है। But don't send it to me through the mail. लेकिन इसे मुझे मेल के माध्यम से न भेजें। Because the post office employees are a bunch of crooks. लेंचो, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी बदमाशों का एक समूह है। लेंचो, डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल। द वे अ क्रो, जिस तरह एक कौवे ने। शुक डाउन ऑन मी, मुझ पर गिरा दी। द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक पेड़ से। जिस तरह एक कौवे ने हेमलॉक पेड़ से बर्फ की धूल मुझ पर गिरा दी। हैज गिवन माई हार्ट, अपना दिल दे दिया है। अ चेंज ऑफ मूड, मूड का बदलाव। एंड सेव्ड सम पार्ट, और कुछ हिस्सा बचा लिया। ऑफ अ डे आई हैड रूड डॉट, एक दिन की बात है जिस पर मुझे पछतावा हुआ था। इसने मेरे दिल का मूड बदल दिया है और उस दिन का कुछ हिस्सा बचा लिया है जिस पर मुझे पछतावा था। रॉबर्ट फ्रोस्ट। फायर एंड आइस, आग और बर्फ। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया आग में खत्म हो जाएगी। सम से इन आइस। कुछ लोग बर्फ में कहते हैं। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। मैंने चाहत का जो स्वाद चखा है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। मैं उन लोगों के साथ हूं जो आग का पक्ष लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं दुनिया आग में खत्म हो जाएगी, कुछ लोग कहते हैं बर्फ में। मैंने इच्छा का जो स्वाद चखा है, मैं उन लोगों के साथ हूं जो आग का पक्ष लेते हैं। But if it had to perish twice, परंतु यदि इसे 2 बार नष्ट होना पड़े। I think I know enough of hate. मुझे लगता है कि मैं नफरत के बारे में काफी कुछ जानता हूं। To say that for destruction ice, यह कहना है विनाश बर्फ के लिए। Is also great, भी बढ़िया है। And would suffice dot, और पर्याप्त होगा। लेकिन अगर इसे 2 बार नष्ट होना पड़ा तो मुझे लगता है कि मैं नफरत के बारे में इतना जानता हूं कि विनाश के लिए बर्फ भी महान है और पर्याप्त होगी। रॉबर्ट फ्रोस्ट। थैंक्स। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, भगवान आपका भला करे।